Welcome, guys. Welcome to this channel, and welcome you all to this channel. After a long time back, I've decided to make video on dividend part, cash dividend and stock dividend, because one of my viewer uh, is asking for to make video on cash dividend and stock dividend part because he wanted to have more clarity on cash dividend and stock dividend, right? So finally, I have a chance to discuss on that part. So let's start it without wasting time. So we'll discuss. Okay. So I'll make this short video for you guys, so you can see this. And in case still if you have any doubt, you can just put a comment. So I'll again try to provide a little bit more information on this part. But I think this is enough, right, to discuss on the benefit distribution part, right? So we'll discuss it. Let's start to discuss. Okay, so rather called dividend, so can we call it benefit distribution, right? Benefits means it's anything. Suppose whenever we put our money in bank, we received interest, right? The same way, whenever we do invest in equity and preference shares, we received dividend. Dividend is nothing but it's just income that you received on your investment, right? And the stock and cash part is the form of the benefits that you received on your you know investment. Suppose company earned profit and companies want to distribute something as a consideration, they can distribute in way of cash directly. They can deposit cash to your account, right? The proportionately whatever the rate would be there, according to that they can distribute, right? The first case. And the second case would be if companies want to distribute the stocks instead of cash. Stock is nothing but like that is also benefit that they will receive. You nothing to do or nothing to you nothing to pay on it, on that particular stock, right? That would be free of cost, that company going to distribute to you guys as a shareholder, right? Hope maybe if you guys are investing in capital market, then you would have idea, right? So what is that is, but the the concept here is you know the cash and stock, अगर हम उसको bifurcate ना करें तो भी कोई बात नहीं है. It is just benefits that we received on our investment from the companies. From which companies? Definitely from the public limited companies. Only public limited companies can distribute such a benefit to their shareholders, right? Those benefits can be distributed by quarterly basis, right? Quarter to quarter, quarter to quarter. But yeah, some of the companies can distribute on a quarterly basis and some of companies can distribute the annual basis. So annual basis पे जो भी companies distribute करती है dividend, those companies dividend called as interim dividend, and जो normally dividend distribute होता है quarterly, तो quarterly dividend है, ठीक है. सो व्हाट सो इट इज जो कि स्टॉक डिविडेंड या फिर कैश है, वो दोनों भी बेनिफिट्स है जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, राइट? तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं है. जो कि हमें हमेशा लगता है कि यार ये क्या है, क्या पार्ट है. जैसे कि हमें स्टॉक डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड स्टॉक के आगे डिविडेंड लग रहा है, राइट? स्टॉक के आगे डिविडेंड लग रहा है मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इट वुड क्रेडिट इन योर अकाउंट, राइट? You don't need to pay anything on that particular stock dividend part, right? And the same way, if companies earn lots of profit, right, so they distribute dividend. Then what is bonus shares, right? वो भी एक फॉर्म है बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन का. बट ये जो बोनस शेयर्स है, बोनस शेयर्स कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द earned profit, right? But the not directly I would say, but uh, just let me draw something here. The profit general reserves
right? Provision, right? Whenever company earned profit, right, every quarter company transfer 20% or either 25%, you know, amount to the capital reserve or general reserve accounts, right? Right. Why? Just because companies want to make a provision. If if you know, after 2 years or 3 years, if the company's operating activities went down and there is no such views business, and suppose if after 2 to 3 years or 4 years or in future, I would say, if there is no uh, there is no much funding having with company, and companies want to utilize such a fund, then they can utilize in this way, right? So they can utilize the funds, or they can utilize the funds from capital reserve and general reserve in order to mitigate their daily requirements, or their the working capital requirements as well, right? सो दैट इज द फंडा कि यहाँ पे जो कंपनियां पैसा प्रॉफिट अर्न करती है, ये 20 to 25% अप टू दैट दे ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट, right? So once the transfer quarter on quarter, their reserve get full, or I would say they're reserved increased by the proportionately, or the, for example, when you talk about TCS having 80,000 crore, or Infosys having around 40,000 crores amount in their reserve account. Why they have created such a big reserve? Just because they can deal with any contingencies, or such a kind of disruptions, or any the market instabilities and all such a things, and that is what they have built up strong capital or general reserves in the company, right? The same way other companies can also do, right? Suppose the company's the reserves amount is going to around, just let's take example of TCS, right? And they are having 80,000 crore reserves in their account, and at this point of time, uh, for example, they have decided to expand their business, right? They want to establish their another branch in UK. Either they want to spin off their business, or I would say they want to expand their business in different sector, or in different scale, right? For example, they want to enter in cloud computing, right? And at this point of time, they need a funding. If they need a funding, right, it's a logic, guys. If you require money, then first of all you will approach to your friends, right, or to your relatives, or to your friends relatives, or any nearer one or closest one, right? If they are unable to provide fund to you, then definitely you will reach out to the bank, right? But that bank never offer the money, right, in a free of cost, right? They charge heavy interest rate, right? That is what most of the the businesses, if they have the enough, or the good amount of in their reserves, what they do, they utilize some amount of fund from their reserves to expand their business or to invest somewhere, right? Whenever companies want to invest their reserves amount, right, to their the uh, other investment activities, or other the capital expenditure part, then in that case what they do, because ultimately the reserves are created from the profit, so it means this money is belong to shareholders, right? The capital reserves money is also indirectly belong to the shareholders, right? At the end, shareholders are the investor, right? And once they invested, then company can they run their operation activities, as simple as that.
सो इट मीन्स कि जितना भी ये प्रॉफिट है यहाँ पर, जो प्रॉफिट है ये बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो रन होते हैं वो पैसा जब इन्वेस्टर यहाँ लगाते हैं तभी रन होता है, राइट. एंड वेन एवर कंपनी अर्न प्रॉफिट दे ट्रांसफर प्रॉफिट टू द रिजर्व जस्ट टू डील विथ द फ्यूचर अनसर्टनिटीज. तो उसको डील करने के लिए ये रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं. तो यहाँ पर जो सवाल था कि ये मैंने इतना बैकग्राउंड क्यों बताया, ताकि बोनस शेयर्स कहाँ से आते हैं, जो बोनस में मिलते हैं शेयर होल्डर्स, नथिंग टू पे ऑन इट, राइट. सो दे विल रिसीव्ड इन फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू give the little bit brief background behind the bonus issue, why they want to company want to distribute, and what is the the exactly the story behind the bonus issues. And that is what I discussed whole things with you, right. If the main point is the moot question here is, if companies want to utilize their reserves, right, company distribute, right, bonus shares to their shareholders, and proportionately the company can withdraw the money from the reserves, right. हो सकता है जैसे कि मैंने अभी 80,000 करोड़ की यहाँ पे बात करी, 80,000 करोड़ की बात TCS की, right. If TCS want to utilize 20,000 crore, क्योंकि बैंक और other institutions, why can't we go with them and why can't we approach them to provide advances or funding to the business? Just because किसी भी कंपनी को अगर खुद के जेब में पैसा पड़ा है, हमें अगर इमरजेंसी आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आवर सेविंग्स, राइट, वी चेक आवर लिक्विड कैश directly. We don't reach out to any bankers or any institutions to provide funding to our personal family emergencies or to the business, I would say. आपके पास एक 50 लाख की एफडी है एंड आपको 20 लाख की मतलब ज़रूरत है, डायरेक्टली थोड़ी आप बैंक किसी के मतलब जो बैंक 15-20% इंटरेस्ट चार्ज करती है उनके पास जाओगे, नहीं, राइट. और जो भी नॉर्मल लोकली जब व्हेन यू आस्क फॉर मनी, वहाँ पे भी आपको 3 to 4% मंथली यानी कि 36% एनुअली चार्ज करते, राइट. यू विल नॉट चूज दैट वे टू रेज द फंड, क्योंकि हमारे जेब में 80,000 करोड़ पड़े हैं, 80,000 CR पड़े हैं, तो विल यूटिलाइज दिस, राइट. So let's say TCS decided to utilize 20,000 crore to expand their business activities or other technological, platforms where they want to put their money or invest their money, right? And that is what decided to withdraw the 20,000 crores. So 20,000 crore is something big amount, right? If companies want to utilize this money, तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि भाई हमें हमारा क्या फ़ायदा है, फिर हम क्यों दे ये. अगर ये शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते तो मानो हर एक को 500 रुपये आ जाता है पर शेयर्स, राइट. तो हमें क्यों छोड़े फिर कंपनी को, राइट. तो कंपनी को कहीं ना कहीं पे इसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा. एट द एंड ऑलरेडी आई सेड टू यू गाइस, दिस इज द रिजर्व रहे या कोई भी एसेट रहे तो ये शेयर होल्डर की एसेट्स है, राइट. ये हमें भूलना नहीं चाहिए. तो ये क्यों देंगे फिर, तो उसके बदले में कंपनी को ना डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर्स टू देम. तो ये जब ये बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जितना 1:1, 2:2, जैसे कि एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर को दिए जाते हैं, राइट. जिनके पास एक शेयर है उनको एक बोनस इशू मिलेगा. ये मार्केट में ट्रेडेबल होंगे, ट्रेडेबल नहीं है तो ट्रेडेबल कराएंगे. इसकी प्रोसेस मैंने कहीं बार कॉर्पोरेट एक्शन के लेक्चर्स में बताई है, बट यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा वो चीज़. तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट एट द एंड माई पॉइंट इज कि हियर इन दिस स्लाइड ये स्लाइड में मैंने जो लिखा है, राइट, स्टॉक के अंडर बोनस शेयर्स भी लिखा है पार्ट, तो ये भी एक तुम्हारे बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिट्स का ही पार्ट है, तो ये भी मिलता है, राइट. एंड रही बात स्टॉक डिविडेंड की, कई बार ऐसे हो जाता है, कई बार यानी कि जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करूँ यहाँ पे, राइट, 51% जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास होती है, राइट, जो कि बिजनेस के प्रमोटर्स यानी कि ज़्यादा तौर पर अपनी होल्डिंग कंपनी में होल्ड करते हैं, वो मालिक की तरह है. मतलब ये ज़्यादा they involved in the decision making, policy making, decision making, right. Actually they run the business,
राइट। तो ये लोग होते हैं। एंड रेस्ट 49% जो होल्डिंग होती है ये रिटेल इन्वेस्टर, बाकी एफ आई आईज, म्यूचुअल फंड्स, राइट, हेज फंड्स, एफ डी आईज, इन सब लोगों के पास बाकी रेस्ट होल्डिंग कवर होती है, राइट। मतलब ये लोग पोजीशन ग्रैब करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। द पॉइंट इज, अगर 51% इनके पास पड़ी है, राइट, तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि हाउ टू द डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स। एनीवेज अगर एक कैश भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 51% इनकी जेब में जा रहा है, राइट। एंड ये अगर स्टॉक भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी ज्यादा पोर्शन इनके ही जेब में जा रहा है। बट समटाइम व्हाट हैपेंड इफ कंपनीज, मतलब मैं रीजंस बता रहा हूं कि मतलब स्टॉक डिविडेंड क्यों पिक्चर में आता है, व्हाई कंपनीज वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द स्टॉक डिविडेंड इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड, राइट। तो कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट एमआरएफ की कंपनी जो है उनके काफी कम शेयर्स मार्केट में है, लेट्स से 20,000, राइट। एंड द डिमांड जो शेयर्स की है वो ज्यादा है, डिमांड, उसी के कारण कंपनी के शेयर्स की प्राइस नाउ रीच टू द 90,000। एक शेयर्स की प्राइस है 90,000 की, राइट। तो मतलब यानी कि अगर if apparently if we say only 20,000 shares are in the market, and the demand to this shares is very high, right, and just because of that their share prices are increasing year on year, right। 10 रुपए का शेयर्स जाके what happened, shit, sorry, 10 रुपीज का शेयर जाके 90,000 का बना है, ठीक है, तभी से। तो भी companies, the MRF or their board members has the intention to increase the number of shares, just because if they increase the number of shares, the 90,000 key, the current price of the share should be decreased proportionately, right? So it would around come at, for example, if they distribute, the 20,000 other bonus, or sorry, stock dividend stock, so it means their number of shares would increase, right, so it would double, so it means their market price जो भी है शेयर्स की कम हो जाएगी, वो 45,000 पे आ जाएगी। अगर ये पोर्शन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो स्टॉक ज्यादा मार्केट में लाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो जैसे जैसे यानी कि ठीक है सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड थोड़ी थोड़ी जो है कम कम होती जाएगी, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो करंट मार्केट प्राइस जो है शेयर्स की वो डाउन हो जाएगी। बट ये डाउन हो जाएगी तो आप बोलेंगे कि डाउन हो जाएगी, उसका और उसका क्या रिलेशन है, राइट, रिलेशन है। अगर शेयर्स की प्राइस अंडर प्राइस है कोई स्टॉक, राइट, लॉट्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट in the event, or lots of the retail investor can show their interest to invest in the company. So that is what, if companies look forward to bring the uh, invite a retail investor to invest in their stocks, and that could be one of the reason, तो उसी के चलते भी स्टॉक डिविडेंड कंपनी देती है, राइट। क्योंकि स्टॉक डिविडेंड जब भी आपको मिलता है, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। आपके पास अगर इन्फोसिस के शेयर से, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस ने अगर स्टॉक डिविडेंड दिया है तो आप उसके लिए कुछ भी पे नहीं करोगे, सो दैट यू विल रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट। रेशियो कुड बी 1:1, 1:2, 1:3, जैसे कि रेशियो हमेशा मतलब जैसे कि 2, 4, 3, 5, व्हाट्स एवर इट इज, कंपनी जैसे 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 अप्रूवल मिला है रेगुलेटरी से, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और इंटरनल कुछ कैलकुलेशंस भी होते हैं, राइट, प्राइस चेक करनी होती है, कितनी प्राइस है क्या है। तो रीजन कुड बी मेनी, अगर स्टॉक प्राइस मतलब ज्यादा ही हाई जा रही है या फिर ज्यादा ही ऐसे ओवर प्राइस्ड हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो कंपनी कैन ये इक्वेलेंट, जैसे मानो स्टॉक स्प्लिट के जैसा है, राइट। स्टॉक स्प्लिट करते हैं ना, स्टॉक स्प्लिट क्यों करते हैं हम लोग, द सेम रीजन कि अगर स्टॉक्स के प्राइसेस ज़्यादा है
बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर कंपनी को नंबर ऑफ शेयर्स अपने बढ़ाने हैं, प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स अपने खुद के बढ़ाने हैं, तो रीज़न कुड बी मेनी, तो उसी के चलते भी एक स्टॉक डिविडेंड मार्केट में आता है, राइट, एंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट। बट स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बारे में जब भी आप जैसे कंफ्यूजन होता है, तो समझ लेना है कि स्टॉक डिविडेंड जो कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न करती है उसी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। एंड जो बोनस इशू की बात करें, तो बोनस इशू के लिए जो रिजर्व्स कंपनी के होते जब ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कंपनी को यूटिलाइज करना होता है पैसा, तब भी कंपनी बोनस शेयर्स मार्केट में लाती है या फिर अपने शेयर होल्डर्स को देती है। बट द कॉमन थिंग इज, फॉर अ bonus shares or for stock dividend, you don't need to pay anything on it. You don't need to pay single penny to subscribe or to buy stock dividend or to the bonus shares. It would be in free of cost, right? Company will provide you that in free of cost, right? यही डिफरेंस है, एंड यही मतलब स्टॉक डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स जो है उसकी कहानी है, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, स्टिल यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल अगेन try to explain you in a better way. But I think so this information on stock dividend and bonus issue is sufficient, right? Right, and even this information will help you to crack the interviews as well. Nobody can ask the questions in details like that I have discussed in details in this way. Nobody can ask, but still I have provided ample amount of information with example, right? And even मैंने दो सिनेरियो भी बताए, जैसे कि केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक डिविडेंड मार्केट में लाती है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं हम यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी, राइट। ये मतलब कंपनी जब बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एक तो स्टॉक दे सकती है, ये कंफर्म हुआ, या फिर एक कैश दे सकती है, राइट। इफ कंपनी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द कैश, दैट कैश पोर्शन कॉल्ड एज कैश डिविडेंड, right? If company decided or if company want to distribute the cash, that cash part or consideration called as cash dividend, right? So that is the definition, right? And the important is, कई बार ऐसे होता है, जैसे कि मैंने यहीं पे बात करी, एक अगर टीसीएस की बात करूं, तो टीसीएस में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके सेगमेंट्स होते हैं, राइट। सेगमेंट्स होते हैं कि एफ आई आईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, राइट, देन इंस्टीट्यूशनल प्राइम ब्रोकर्स, राइट, देन रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड ये अक्रॉस द ग्लोब हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल समझो इसमें से कुछ लोग हैं, यानी कि 20% क्राउड है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, फ्रॉम यूके, यूएस, राइट, जर्मनी, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी 20% आउट ऑफ 100%, राइट, और 80% जो इंडिया के फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में कंपनी को तो कैश डिविडेंड देना है, कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है। Company has two options, right? There is no such any obligation on the company to distribute the dividend in certain currency. They don't have any obligations. There is no such written the section or provision on any document, right? It is just a free offer that companies want to offer the benefit in a different currency, right? Either their shareholders can choose their option to receive the benefit in that particular currency. For example, I am from India and I am the shareholders of TCS. I'll choose INR definitely. If there is a person, right, there is a person who is from UK, right, he want to subscribe or receive that benefit in for example in there is a person from US, sorry, he want the benefit in USD,
and there is a person from again UK, right? He want the benefit in GBP, एंड मुझे तो है INR में, राइट? सी द लॉजिक इज सिंपल. तो जब भी ये कंपनी डिसाइड, मतलब कंपनी को लगता है कि चलो, बट ये द रीजन इज कि व्हाई कंपनी विल डू दिस, राइट? रीजन कुड बी मेनी. अगर मैं, मुझे जो लगता है वो रीजन ये है कि कंपनी को अगर अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने म्यूचुअल फंड या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना के रखना है, इन दैट केस ऑल्सो कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट इन देयर इंटरनेशनल करेंसीज, राइट? ये कंपनी, चलो कि यार अपने शेयर होल्डर्स है, अपने को अच्छे उनके साथ रैपो बना के रखना है, क्योंकि दे आर द इवन ओनर, राइट? दे हैव सब्सक्राइब्ड द होल्डिंग इन द कंपनी, और दे हैव होल्डेड पोजीशन इन द the organization. That means they are also owner, even they can also vote against it, right? तो एक बेनिफिट हो सकता है. कंपनी को अपनी द इन्वेस्टर को एंगेज करके रखना है, अपने शेयर होल्डर्स को एंगेज करके रखना है, वो एक बेनिफिट हो सकता है. इसलिए कंपनी आगे चल के डिफरेंट मल्टी करेंसी में बेनिफिट देती है, राइट? जो मल्टी करेंसी में बेनिफिट आता है उसको कैश डिविडेंड को ही बोलते हैं कि ये वॉलंटरी कैश डिविडेंड है, राइट? वॉलंटरी है, या फिर उसको वॉलंटरी से एक कॉर्पोरेट एक्शन नाम का जो, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसे, टाइप है, तो उसमें बोलते हैं ऐसे कि ऑप्शनल, ऑप्शन विथ मैंडेटरी और मैंडेटरी विथ चॉइस, दैट यू कैन से कि cash dividend is a mandatory event, and if the company offer the benefit in many many other currencies or multi currencies, then that event will be the mandatory with choice, because company has given choice to their shareholders whether they can receive the benefit in USD or INR or other GBP and other currencies. तो उस केस में ये फिर डिविडेंड मैंडेटरी विथ चॉइस बन जाता है. तो ये ऐसे यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें वर्कआउट करती है. बट अगर सेम केस 100% अगर शेयर होल्डर से सभी को INR में बेनिफिट चाहिए, INR में बेनिफिट चाहिए, सो दैट वुड बी मैंडेटरी कैश डिविडेंड, राइट? ये मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि एक ही करेंसी में जा रहा है बेनिफिट, एंड सभी कम्युनिटी समझो एक ही कंट्री से है, सो देयर इज नॉट टू वरी कि वो दे सकती है कंपनी एक ही, राइट? तो ये पूरा ऐसे बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन वर्कआउट करता है. तो उसके आगे और थोड़े से 2 स्टेप बच जाते हैं, जो कि कॉम्बो ऑफर उनको बोला जाएगा. कॉम्बो ऑफर का मतलब है कि मतलब कोई शेयर होल्डर्स है जिनको कैश भी चाहिए, राइट, एंड स्टॉक भी चाहिए. तो ये 2 चीज़ें मैं 5 मिनट में डिस्कस करूंगा, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बोला कि कॉम्बो ऑफर की हम बात कर रहे हैं. होता है ना कि मतलब तुम्हें कैशबैक भी मिल रहा है और कुछ प्रोडक्ट भी मिल रहा है साथ में, द सेम वे दैट यू कैन टेक. जैसे कि स्टॉक भी चाहिए एंड कैश भी चाहिए, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बनता है कैश एंड स्टॉक ऑप्शन, राइट? क्योंकि शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है. इफ दे वांट कैश दे कैन सब्सक्राइब, इफ दे वांट कैश दे कैन सब्सक्राइब, आइदर इफ दे वांट बोथ. जैसे कि मानो कंपनी ने 100 रुपये डिविडेंड दिया था, राइट? 100 रुपये में से 50 रुपये कैश चाहिए, यहाँ पे लेते 50 रुपये कैश चाहिए, एंड 50 रुपये के इक्वेलेंट, 50 रुपये के इक्वेलेंट स्टॉक चाहिए. जैसे कि यहाँ पे एक शेयर्स आ गए. तो मतलब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो XYZ, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 50 रुपये डिविडेंड मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक शेयर्स भी मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा. तो ये कॉम्बो ऑफर्स भी आपको मिलेगा कि जो इसको डिविडेंड का ही पार्ट है. ये बहुत सारे लोग जो रिसेंटली हु पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, दे माइट बी नॉट नो अबाउट दिस द कैश एंड स्टॉक ऑप्शन पार्ट. बट ये भी एक, जैसे कि कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड उसके थोड़ा सा आगे का पार्ट है, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिविडेंड, सॉरी हाँ डिविडेंड, राइट? तो ये भी एक डिविडेंड का ही पार्ट है, ठीक है? और उसके आगे हम जब थोड़ी सी और आगे जाके बात करें तो यहाँ पे है ड्रीप.
डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। यहाँ पर मैं स्टॉक की बात करता, सॉरी कैश की बात करूंगा एंड स्टॉक की बात करूंगा। जैसे कि मानो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये भी बताना चाहती है कि इफ दे वांट टू री इन्वेस्ट देयर मनी in our company, so they have an option, they can do that, right? The same way यहाँ पर मानो कि समझो 100 रुपीज़ वही डिविडेंड मिला था, यहाँ पे 100 रुपीज़ डिविडेंड मिला था, आप ही शेयर होल्डर्स को मानो XYZ यहाँ पे, एंड जो शेयर्स की प्राइस है, एक प्राइस तय होती है, फ्लोर प्राइस बोलते हैं उसे, तय होती है। मानो कि यहाँ पे एक शेयर्स की प्राइस 50 रुपये कर दी है, राइट, ऐसे 50 रुपये कर दी है, 1:2 ये रेशो के हिसाब से। तो जैसे ही आपको लगा कि यार कंपनी में दम है, तो कंपनी आगे जाके और रिटर्न कमाएगी, राइट। एंड वही आपका मतलब, जैसे कि आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, एक तो आपका पैसा बढ़ना चाहिए, डबल होना चाहिए, दोज आर द रीजन। तो आपको लगा कि कंपनी में दम है, कंपनी आगे जाके दे कैन परफॉर्म वेल एंड दे कैन प्रोवाइड हैंडसम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड देन यू थिंक, राइट, आई शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी अगेन। तो कंपनी ऑप्शन दे रही है आपको कि जो मैं डिविडेंड दे रहा हूँ दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अवर कंपनी, राइट। तो फिर आपने डिसाइड किया कि चलो यार ये तो डिविडेंड है मेरा, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ये दो स्टॉक आप क्या करोगे, खरीदोगे। किसमें, 100 रुपए में, क्योंकि 50 रुपए मैंने यहाँ पे प्राइस बोली थी ना। तो ये तो आपको ये दो स्टॉक मिल जाएंगे, उसके बदले में कैश, कैश डिडक्ट हो जाएगा। जो कैश आपको मिलने वाला था ये कंपनी यूज करेगी। अभी वही फंडा की कंपनी कैश क्यों यूज करेगी, क्यों नहीं, ऑफकोर्स यार कोई तो मतलब जरूरत होगी ना कंपनी को, कंपनी वांट टू यूटिलाइज देयर फंड इन अ डिफरेंट वे। द रीजन कुड बी anything, like if they want to to mitigate their daily needs, or they want the fund for their the uh, daily operating activities, or they want to establish another unit in any country, or they want to build, or they want to purchase anything, land or anything, right? तो रीजन कुड बी मेनी। तो रीजन आप खुद सोच सकते हैं कि बिजनेस मन की तरह की भाई क्या क्या लगेगा बिजनेस के लिए, तो वैसी चीज़ है। तो ये हर चीज़ ऐसे वर्कआउट करती है, राइट। इनको मैंने कॉर्पोरेट एक्शन के लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से बताया था, बट वो प्रोसेसिंग पार्ट के हिसाब से बताया था। तो ये आपको समझने के लिए हेल्प होगी, राइट। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज कि ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं तो वो डिफ़िकल्टी हो जाती है। बट इफ़ यू if you are looking for for interview preparation, right, then you can go through this video. Though this information is very crucial, you cannot find this information anywhere, because the sources that are very the vulnerable, that you can't find easily anywhere on the Google or on YouTube as well, right. And very few people know, so what are those concepts in a very practical way, so they cannot provide you such the crucial information, and like in free of course that nobody can. But yeah, there are few YouTube channels, they can provide information, I have seen that, but that is also the limited information they are provided, or they are providing. And even those you can watch that also, I'm not asking you or not forcing you to go through this channel, just because जो भी information है practical way से I try to explain it. I have an intention, guys, you should understand this, right? You should understand the concept, you should understand the mechanism behind the concept, right? So what is stock dividend, what is DRIP, what is profit distribution and all, but at the end जो भी कॉन्सेप्ट जितने भी अलग अलग नाम दिया जाता है, बट यही है कि देर आर ओनली टू रीजंस, राइट। एक तो कंपनी को फंड यूटिलाइज करना है, फिर कंपनी को शेयर होल्डर्स का पैसा, मतलब शेयर होल्डर्स को जो पैसा कमाया कंपनी ने वो देना है। तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग नाम दिए हैं, तो वो नाम्स है, राइट। तो इससे ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं है। तो इसलिए स्टिल इफ you may have any question that you can put it in a comment, so I'll try to answer to your question. And still if you have a doubts, then I'll share my number or email ID with in the comment section, that you can reach out to me via a number. That is also fine, right guys? So for now we'll stop here, all right. After long time back I have made this video, because uh, I don't have seriously I'm very busy, so I don't have time, so I could not connect with you guys, and I could not make a video quickly. But yeah, you can wait.
नेवरलेस, बिकॉज जैसे आप जब भी वेट करते बोलते हैं ना कि आ, समय ज़्यादा समय लगा, ठीक है, बट जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, क्वाइट indeed an insightful information that I am giving to you through this session that you can watch, right? अगर still doubt रहेगा, that you can still put a comment. चलो, thank you guys, thanks a lot.